Assalamu alaikum and welcome to lecture 25. Our topic is investment analysis and portfolio management. Let's have a look at today's outline. Our outline includes recap of the previous lecture, as this is our practice to first look at the topics which we have studied in our earlier lecture. Then we will jump to expected returns, population variance, population covariance, choosing an investment portfolio. So these are the topics which we have to study today. As you know, we are in the process of building our concept regarding portfolio management, and we have discussed certain important terminologies which are used in the formulas and in practical scenarios. So we have discussed the terminologies, and we have also solved certain problems. So until now we have discussed risk regarding portfolio and returns, how to calculate expected returns, how to calculate and what are the variance and what are the covariance and what are their formulas. We have discussed all these things. And we are studying expected return in our previous lecture, so we will continue from the expected return topic. The expectation can now be employed to evaluate the expected return on an asset and a portfolio. This is achieved by introducing the idea of states of the world. A state of the world summarizes all the information that is relevant for the future return of an asset. So the set of states describes all the possible different future financial environments that may arise. Of course, only one of these states will actually be realized. These states of the world are the analyst way of thinking about and modeling what generates the randomness in asset returns. तो मुख्तलिफ एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अप द प्रोबेबिलिटीज, कि अगर 20% आपको रिटर्न मिलेगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. और प्रोबेबिलिटी आप कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी यू कैन डेवलप थ्रू योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, और जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन है, उसको देखते हुए प्रोबेबिलिटीज बनती हैं. लेकिन नॉर्मल सिनेरियोज में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं, उसको देखते हुए एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है. लेट देयर बी m states of the world. If the return on an asset is in state J is Rj, यानी return on asset is reflected by J, Rj, and the probability of state J occurring is -J, then the expected return on asset I is, किस तरह expected return उसका mention करेंगे? अगर प्रेजेंट करना हो, फॉर्मूला उसका मेंशन करना हो, तो किस तरह मेंशन करेंगे? थ्रू यूजिंग दिस फॉर्मूला कि आप पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न को मेंशन करेंगे. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उसके आगे उसकी प्रोबेबिलिटीज और उसका रिटर्न्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं. जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, जितने भी उसके रिटर्न्स हैं, उन प्रोबेबिलिटीज से लिंक, उन सबको सम अप करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होगा. और यूजिंग द सेम नोटेशन एज फॉर द मीन, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उसका मीन एवरेज रिटर्न कैलकुलेट अगर करना हो तो वो आर बार से आप शो करेंगे, और उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं समेशन के साइन लगा के, कि 1 स्टेट से लेके m स्टेट तक हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटीज और उसको मल्टीप्लाई करना है विद रिटर्न्स. So this is the formula how to calculate mean return or average return and estimated expected return.
तो ये फार्मूलाज हैं। अभी हम उसकी आगे चल के जब तमाम ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप हो जाए तो किसी भी सिनेरियो को आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक्स कवर हो जाए तो हम फुल फ्लैश सिनेरियोज को कुछ टैकल करेंगे, समझेंगे उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, प्रेजेंट किस तरह करते हैं सोल्यूशन को, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजीद क्लियर हो जाएगी। इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर नेक्स्ट ईयर मे बी हॉट, वार्म और कोल्ड। यानी 3 ऑप्शंस आ गए हैं, हॉट भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर टेम्परेचर, द रिटर्न्स टू स्टॉक इन अ फूड प्रोडक्शन कंपनी इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स आर गिवन इन द टेबल। यानी अभी एक फूड प्रोडक्शन कंपनी है, उसका रिटर्न्स जो है वो लिंक है विद द टेम्परेचर्स के, उसके जो गुड्स हैं जो सेल होंगे उसका रिटर्न्स किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द टेम्परेचर। तो वो स्टेट्स आपको बताई गई हैं इस टेबल के अंदर कि क्या क्या स्टेट्स हैं आपकी, हॉट, वार्म, कोल्ड, और उसके रिटर्न्स कितने हैं वो भी आपको बता दिए हैं, 10, 12 एंड 18। इफ ईच स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू अकर विद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको बता दी गई है 1/3 इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टाइप ऑफ स्टेट। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसी फॉर्मूला को कंटिन्यू करें आप तो आपके सामने एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरह कर रहे हैं कि हम हर स्टेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ, और उसको सम अप किया तो रिजल्ट आया हमारे पास 13.333। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक्स ऑफ ए फूड प्रोडक्शन कंपनी। तो इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल है, कंसीडर पोर्टफोलियो कंपोज्ड ऑफ 2 assets A and B. Asset A constitute 20% of the portfolio and asset B 80%. The returns on the assets in the 5 possible states of the world and the probability of those states are given in the table. तो यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शंस बता दिया गया है कि जो 2 एसेट्स हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर, उनको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं बाय अल्फाबेट्स ए एंड बी, और उनका प्रोपोर्शन बता दिया गया कि व्हाट आर द प्रोपोर्शन इन टोटल पोर्टफोलियो, दैट इज 20% ऑफ एसेट ए एंड 80% ऑफ एसेट बी, और उनके रिटर्न्स बता दिए गए हैं, द रिटर्न्स ऑन द एसेट्स इन द 5 पॉसिबल स्टेट्स। अभी आप पिछले सिनेरियो में आपके पास 3 पॉसिबल स्टेट्स थी, इसमें 5 पॉसिबल स्टेट्स हैं, एंड द प्रोबेबिलिटीज, उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। देखते हैं उसको कि आपके पास स्टेट्स हैं 5, दिस आर योर 5 स्टेट्स, एंड द प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन कर दी गई है, प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.4, 0.1 एंड 0.2 इन ईच स्टेट, और उनके रिटर्न्स भी आपको बता दिए गए हैं। दीज आर योर रिटर्न्स कि हर स्टेट में उसके क्या रिटर्न्स हैं एसेट्स के, और उनकी क्या अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात आ गई। पहले एग्जांपल में एक ही एसेट था, उसके रिटर्न्स कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे अभी एक पोर्टफोलियो है, उसके अंदर 2 एसेट्स हैं, उसके रिटर्न कैलकुलेट करने हैं। तो हम 1 by 1 ईच एसेट के रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और उनके बाद उसका टोटल रिटर्न देखेंगे ऑन द पोर्टफोलियो। तो आपके पास पहले एसेट ए के एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने कैलकुलेट किए, वो किस तरह कैलकुलेट किए, जैसे कि हम फार्मूला में देख चुके हैं कि आप रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे 5 प्रोबेबिलिटीज हैं, 5 रिटर्न्स हैं, तो उनको रेस्पेक्टिव एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो समेशन का रिजल्ट आया हमारे पास फॉर एसेट इज 3.1 और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट बी इज 1.7। तो आप देख रहे हैं कि हर प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रेस्पेक्टेड रिटर्न के साथ। ये दिस इज योर प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज योर रिटर्न। तो
यूं हमने कैलकुलेट किया तो 3.1 आया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट ए एंड 1.7 ऑन एसेट बी। तो पोर्टफोलियो का आप जब कैलकुलेट करेंगे, पोर्टफोलियो की प्रोपोर्शन आपको मालूम है कि 20% फॉर एसेट ए एंड 80% फॉर एसेट बी। तो उन प्रोपोर्शंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच एसेट तो आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.1 एंड 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.7 तो आपके पास आ गया 1.98 is the expected return on your portfolio. Notice that the same result is obtained by writing. अगर ये तो हमने इंडिविजुअल एसेट्स के कैलकुलेट किए और फिर पोर्टफोलियो में क्लब कर दिए। अगर आप इसके टोटल एक ही फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, वो हर स्टेट का प्रोबेबिलिटी सेम है फॉर बोथ एसेट्स, तो दोनों रिटर्न्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द प्रोबेबिलिटी और उनकी प्रोपोर्शन भी यहाँ पे एड अप करनी होगी। तो वो किस हम कर रहे हैं कि दिस इज द रिटर्न ऑन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, और फिर पहले उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द प्रोपोर्शन, दिस इज योर प्रोपोर्शन एंड दिस इज योर रिटर्न, दिस इज योर प्रोपोर्शन फॉर एसेट बी और दिस इज द रिटर्न। और तो रेस्पेक्टिव आप एड अप कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज को इन चीजों के साथ जिसमें आपकी प्रोपोर्शन आ रहा है और उसका रिटर्न आ रहा है, यानी हर स्टेट के अंदर उसका प्रोपोर्शन जो एसेट का बन रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द रिटर्न और उसको फिर एड अप करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द प्रोबेबिलिटी। तो हर स्टेट के अंदर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा, उसको जब एड अप करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो आ जाएगा, विच कम्स एंड वी गेट द सेम नंबर दैट इज 1.98। तो ये इस तरह अगर इसको प्रेजेंट करना चाहे इन अ सिंगल फार्मूला तो उसको इस तरह भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन ए पोर्टफोलियो। और अगर ऐसा ना करना चाहे, इंडिविजुअल करना चाहे, तो ऊपर जैसा हमने किया है ये दिस इज अ इंडिविजुअल फार्मूलाज और नीचे हमने एक ही फार्मूला से उसको इंडिविजुअल रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं, रिटर्न फॉर ए, रिटर्न फॉर बी और फिर एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। और यहाँ पे हमने एक क्लब कर दिया तमाम फार्मूलाज को और सिंगल फार्मूला में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न के किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी कम्स टू पॉपुलेशन वेरिएंस। द पॉपुलेशन वेरिएंस mirrors द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएंस इज द कि हाउ मच द एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरीज फ्रॉम द एक्चुअल रिटर्न, दिस इज द वेरिएंस। तो सैंपल वेरिएंस के इंटरप्रिटेशन में हम पॉपुलेशन वेरिएंस उसको इंटरप्रेट करता है एज बीइंग द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, बट वेयर द सैंपल वेरिएंस फाउंड द एवरेज by dividing by the number of observations or less than or one less than the numbers of the observations, the population variance averages by weighting each square deviation from the mean by the probability of its occurrence। जब हम ये फॉर्मूला देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और अगर सिंगल एसेट हो, for a single asset the population variance is given by the expected value of the deviation from the mean। मीन आपको कैलकुलेट करने आता है कि मीन या एवरेज रिटर्न किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेविएशन को हम सिंगल एसेट में निकालेंगे। जो किस तरह होगा वो आपके पास सामने फार्मूला प्रेजेंट हो रहा है कि दिस इज योर वेरिएंस ऑन ए सिंगल एसेट और उसका फिर आप सिंपल वेरिएंस जो कि इक्वल टू है E विद इन द पैकेट R माइनस एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और होल स्क्वायर। तो दोनों का डेविएशन यानी ये वही जिससे आप कैलकुलेट कर रहे थे सैंपल वेरिएंस को,
उस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट हो रहा है. As for the sample variance, the population variance is always non-negative. The population standard deviation को मालूम है कि it is the under square root of variance. तो आप वेरिएंस को स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं और इसमें इसके सम क्या है, जितने भी उसकी कंडीशंस या जितने भी उसकी स्टेट्स होंगी उन हर स्टेट का इंडिविजुअल इम्पैक्ट एडअप करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देन वी गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. द अबव द टेबल गिव्स द रिटर्न्स ऑन अ स्टॉक इन द 5 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस स्टेट्स. यहाँ पे आपके सामने स्टेट्स भी हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं और रिटर्न्स हैं इन द रिस्पेक्टिव स्टेट. तो उसकी पॉपुलेशन वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने फार्मूला ऊपर डिस्कस किया था और जो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि द पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल टू उसकी प्रोबेबिलिटी और उसका रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड या एवरेज रिटर्न. एवरेज रिटर्न आपने किस तरह कैलकुलेट किया कि आपने रिस्पेक्टिव उसके रिटर्न्स को एडअप किया, 5 + 2 + -1 + 6 + 3. These are 5 states divided by 5 and you get the answer 3. तो इस तरह आपने उसका मीन रिटर्न और एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया फॉर यूजिंग इट इन योर वेरिएंस फार्मूला. तो हर रिटर्न को माइनस किया उसके एवरेज रिटर्न के साथ और उसको सम स्क्वायर किया तो आपके पास सम अप करके जो आंसर आया है दैट इज योर पॉपुलेशन वेरिएंस एंड दैट व्हाट वी गेट 7.9. सो दिस इज योर population variance. Now we move forward and what is our next topic? Population covariance. The population covariance mirrors the sample covariance in providing the measure of the relative movements of the asset returns. जिस तरह sample covariance था उसकी उसी तरह population covariance है और ये covariance को आप मालूम है it defines the relative movements of the assets in a portfolio. कि जो पोर्टफोलियो के अंदर 2 या 3 एसेट्स हैं उनकी मूवमेंट को प्रेजेंट करता है कि आइदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर 2 डिफरेंट एसेट्स. तो उसमें हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 2. अगर आपके पास 2 एसेट्स हो पोर्टफोलियो में, एसेट ए एंड एसेट बी, उनका पॉपुलेशन को वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे आप कि सिग्मा ए बी से आप प्रेजेंट करेंगे इसको और ये दिस विल बी इक्वल टू आपका रिटर्न ऑन एसेट ए माइनस उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और इसी तरह रिटर्न ऑन एसेट बी माइनस उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एसेट बी. इसको सम अप करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद योर प्रोबेबिलिटीज तो आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा ए बी विच इज द पॉपुलेशन कोवेरियंस. तो सैंपल कोवेरियंस के साथ एक पॉपुलेशन कोवेरियंस भी कैलकुलेट हो रहा है. तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला देख लिया कि इसको अगर फॉर्मूला आपको राइट करना हो तो लिखना हो तो उसमें आप किस तरह इसको मेंशन करेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी क्या क्या सिंबल्स यूज करेंगे और किस तरह प्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मूला को. उसमें एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं. कंसीडर द रिटर्न्स ऑन 3 स्टॉक्स इन द फॉलोइंग टेबल. एज्यूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक अकरिंग इज 1/3. 3 स्टेट्स हैं आपके पास और 3 स्टॉक्स हैं, यानी ये पोर्टफोलियो है जिसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और स्टॉक्स, स्टॉक ए बी एंड सी. तो स्टेट 1 में आपके पास जो रिटर्न आएंगे वो मेंशन है इन अगेंस्ट ईच स्टॉक और स्टेट 2 में क्या आएंगे रिटर्न्स और स्टेट 3 में क्या रिटर्न्स आएंगे वो भी मेंशन है अगेंस्ट ईच स्टॉक. तो इसका हमने अभी क्या कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन कोवेरियंस.
तो यहाँ पे है कि आपको लंबी कैलकुलेशन नज़र आ रही है। इस कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं कि हम हर इंडिविजुअल एसेट का पहले वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो देखते हैं। द मीन रिटर्न ऑन द स्टॉक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, आपको पता है मीन रिटर्न को किस तरह आर बार से हम शो करते हैं, आर बार ए। तो मीन रिटर्न पहले हमने कैलकुलेट कर लिया हर एसेट के, जो कि आपको पीछे जो टेबल दिखाया गया था वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक एसेट का आपको मीन रिटर्न निकाल सकते हैं कि उसका सिंपल सा फार्मूला था 7 + 3 + 5। इसके 3 टाइप के रिटर्न्स हैं इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, और इसको अगर आप डिवाइड करें बाय 3 टाइप्स ऑफ स्टेट तो आपके पास एवरेज रिटर्न आ जाएगा, डेट इज 5। और इसी तरह स्टॉक बी और स्टॉक सी का भी आप मीन रिटर्न और एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। एंड बी के केस में हमारे पास 5 आया है और सी के केस में हमारे पास 4 आया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसके मीन रिटर्न्स निकाल लिए, क्योंकि हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न होने चाहिए, वो हमने निकाल लिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 ऑफ ईच स्टेट, के हर स्टेट के इंकर होने के चांसेस कितने हैं, 1/3, यानी ईच स्टेट हैज इक्वल चांसेस टू बी इंकर्ड। तो यहाँ पे हमने वेरिएंस निकाला है, वेरिएंस ऑफ स्टॉक के उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया विद द एक्चुअल रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, और उसको स्क्वायर किया। तो आपके पास स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएंस इज अ स्क्वायर। वेरिएंस में जो भी रिजल्ट आते हैं उसको हम स्क्वायर करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आते हैं, वेरिएंस का रिजल्ट। तो वेरिएंस हमने हर इंडिविजुअल एसेट्स के कैलकुलेट कर लिए हैं, ए, बी एंड सी, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 2.667 in the case of A, 8.667 in the case of B and 2.667 in the case of C। तो इससे हमारे पास हर स्टॉक का पहले हमने मीन निकाला, एवरेज रिटर्न निकाला या मीन रिटर्न निकाला, देन वी हैव कैलकुलेटेड द वेरिएंस ऑन ईच एसेट, और उसके बाद हम कोवेरिएंस पाएंगे कि कोवेरिएंस पे आप प्रोबेबिलिटीज आपको पता है। प्रोबेबिलिटीज आपको जब पता है तो उसके हमने कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय आपको उसको जो एक्चुअल रिटर्न है माइनस आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द एसेट बी, क्योंकि यहाँ पे हम जब दो एसेट्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर एसेट ए और बी को आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों का प्रोबेबिलिटीज और दोनों के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्चुअल रिटर्न के साथ मैच करके उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7.5 आपका एसेट ए का है और 8.5 आपका एसेट बी का है। तो दूसरी स्टेट में जाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है चांसेस इंकर होने के, और दिस इज फॉर एसेट ए एंड दिस इज फॉर एसेट बी के एक्चुअल रिटर्न को हमने माइनस किया विद द मीन रिटर्न और एवरेज रिटर्न। तो इस तरह हमने तीनों स्टेट्स में ए और बी को कंबाइन किया। तो इस तरह आपके पास क्या आ गया, कोवेरिएंस, एंड कोवेरिएंस कम्स टू 3.333 इन द केस ऑफ एसेट ए एंड एसेट बी, एंड माइनस 2.667 इन द केस ऑफ एसेट ए एंड सी। ये जो यहाँ पे ये तो सेम है, जो फर्स्ट उसका पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है ये है सी का, ये ए का ही है और ये आपका है सी का। ये सेम है ऊपर जो है जैसे था, और ये है आपका सी का कि एक्चुअल रिटर्न और जो है मीन रिटर्न एवरेज रिटर्न हमने लिए हैं, डेट इज ऑफ एसेट सी। तो कोवेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया ए बी का, डेट इज 3.333, और कोवेरिएंस ऑफ एसेट ए एंड सी इज -2.667, एंड इसी तरह कोवेरिएंस ऑफ एसेट बी एंड सी इज कम्स अराउंड टू 4.6667। तो ये हमारे पास कोवेरिएंसेस आ गए, और ऊपर से हमारे पास उसके वेरिएंस आ गया।
तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वेरिएंस हमने कैलकुलेट किए फॉर ईच इंडिविजुअल एसेट और कोवेरिएंस हमने कैलकुलेट किए ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स। इसको आप समराइज करना चाहें और तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपका रिटर्न्स और उसका कोवेरिएंस और उसका वेरिएंस जो है वो किस तरह यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अभी तक हमने टर्मिनोलॉजीज उसकी सीख ली थी कि टर्मिनोलॉजीज पोर्टफोलियो में क्या क्या यूज होती हैं और उनके मीनिंग क्या है, उनके फार्मूलाज क्या हैं, उनकी सिंपल कैलकुलेशंस क्या हैं। और जो हमारी सिनेरियोज की कैलकुलेशन है पूरे पोर्टफोलियो को जब हम कंपेयर करेंगे विद ईच एंड अदर और उसके बाद हम रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो इसमें आपके सामने कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स विच हैव टू बी कंसीडर्ड बिफोर चूजिंग अ पोर्टफोलियो। उसमें सबसे पहले आया आपके पास investor preference, then efficient portfolios and the efficient frontier, and then market portfolio, and then risk-free investments and choosing an investment portfolio, market premium, the beta factor of portfolio, systematic and unsystematic risk। ये जो आपको चार एलिमेंट्स आखिर में नजर आ रहे हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्रीमियम, बीटा फैक्टर और पोर्टफोलियो एंड सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक रिस्क, ये चार एलिमेंट्स को हम यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, बट इनकी डिटेल कैलकुलेशंस पे हम जब हम पोर्टफोलियो के बाद कैपम को डिस्कस करने लगेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को, उस वक्त इनकी डिटेल कैलकुलेशंस और इनके डिटेल डिस्कशन उस वक्त करेंगे। तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस, यानी जब एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने जा रहा है, बनाने जा रहा है, तो उस वक्त उसकी प्रेफरेंसेस को मद्देनजर रखना होगा कि व्हाट आर द प्रेफरेंसेस ऑफ एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स विल यूजुअली अवॉइड रिस्क, ये कॉमन थॉट है जो कि तमाम इन्वेस्टर्स की होती है नॉर्मली, कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं और रिटर्न को हाई रखना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर्स यूजुअली अवॉइड रिस्क इन द सेंस दैट इफ दे इन्वेस्ट इन अ रिस्की पोर्टफोलियो दे विल एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न देन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ लेस रिस्की पोर्टफोलियो। A higher return is required to compensate the investor for the higher risk। अभी यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं। पहले तो इन्वेस्टर इज यूजुअली अवॉइड रिस्क, मोर रिस्क, बट ऑन द अदर हैंड ही नोज कि इफ ही इन्वेस्ट इन अ रिस्की पोर्टफोलियो ही विल गेट हायर रिटर्न्स, और हायर रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट द इन्वेस्टर फॉर द हायर रिस्क। ये इसका रीजन है कि वो क्यों हायर रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। सपोज दैट एन इन्वेस्टर हैज अ चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज। अब यहाँ पे पोर्टफोलियोज हैं ए बी सी डी और उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, उससे आगे उसके रेस्पेक्टिव रिस्क डिफाइन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। तो पोर्टफोलियो के ए के केस में आप देख सकते हैं 6% रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगेंस्ट 4% रिस्क फैक्टर। इसी तरह पोर्टफोलियो बी के केस में 7% एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगेंस्ट 3% रिस्क फैक्टर। इसी तरह पोर्टफोलियो सी में 9% एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगेंस्ट 5.5% रिस्क फैक्टर, और डी के केस में 8% एक्सपेक्टेड रिटर्न है और 6% रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिव रिस्क हर पोर्टफोलियो के डिफरेंट है और उसके रिटर्न्स भी डिफरेंट है। अगर 4% रिस्क फैक्टर
इन्वेस्ट पोर्टफोलियो आपको 6% रिटर्न दे रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि जो पोर्टफोलियो बी है डेट इज गिवन डेट हैज अ रिस्क फैक्टर ऑफ 3%, उससे कम है, पोर्टफोलियो ए से कम है और उसका रिटर्न भी ज्यादा है 7%। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर को एनालाइज करना होगा कि एक पोर्टफोलियो जिसमें वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें रिस्क का एलिमेंट कितने हैं और उसका रिटर्न्स कितने हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर इस पोर्टफोलियो को देखते हुए पोर्टफोलियो ए की बजाय बी को सिलेक्ट ज्यादा करेगा कि उसमें रिस्क फैक्टर जो है डेट इज लोअर देन द पोर्टफोलियो ए और उसका रिटर्न्स भी हायर है। तो इसमें आप किस तरह इन्वेस्टर प्रेफरेंस निकालेंगे कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क अवर्स है या रिस्क लेना चाहता है या वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो अ नॉर्मल रिस्क अवर्स इन्वेस्टर विल नॉट सिलेक्ट पोर्टफोलियो ए। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्टफोलियो ए में रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी कम है एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो बी, बिकॉज पोर्टफोलियो बी ऑफर्स अ हायर रिटर्न देन पोर्टफोलियो ए फॉर लेस रिस्क। यानी पोर्टफोलियो बी का आप देख रहे थे कि रिस्क भी कम है, रिटर्न ज्यादा है, और पोर्टफोलियो ए में रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो बी, सो ही विल गो फॉर पोर्टफोलियो बी। Similarly, a risk-averse investor will not select portfolio D, क्योंकि आपने देखा था स्लाइड पे कि पोर्टफोलियो डी में 8% उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगेंस्ट 6% रिस्क, यानी रिस्क काफी ज्यादा है और रिटर्न 8% है। और उसको अगर कंपेयर किया जाए विद पोर्टफोलियो सी, उसमें रिस्क कम है और रिटर्न भी ज्यादा है। तो कोई भी इन्वेस्टर इन सूरत हाल को देखते हुए रिस्क अवर्स इन्वेस्टर विल नॉट सिलेक्ट पोर्टफोलियो डी बिकॉज पोर्टफोलियो सी ऑफर्स अ हायर रिटर्न देन पोर्टफोलियो डी फॉर लेस रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क के साथ साथ आपको उसके रिटर्न्स भी देखने होंगे कि कितना अर्न कर सकते हैं आप कितने रिस्क में। इट इज नॉट क्लियर वेदर अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर वुड सिलेक्ट पोर्टफोलियो बी or portfolio C because portfolio C offers a higher return for greater risk। जो portfolio C है उसके रिटर्न ग्रेटर है एज कंपेयर टू फॉर ग्रेटर रिस्क, यानी उसका रिस्क एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो B ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। एंड पोर्टफोलियो B ऑफर्स अ लोअर रिटर्न बट लेस रिस्क। तो पोर्टफोलियो B क्या दे रहे हैं, रिटर्न कम दे रहे हैं लेकिन रिस्क भी उसका कम है। तो यहां पे ए और डी को तो वो सिंपली रिफ्यूज कर देगा, बट व्हेन ही कम्स टू इन सिलेक्टिंग बी एंड सी, उसने ए और डी को तो रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ पे जो रिस्क है वो ज्यादा भी है और रिटर्न्स उसके कम है एज कम्पेयर टू अदर पोर्टफोलियोज। तो आखिर में उसके पास क्या बचे, बी एंड सी। तो यहाँ पे उसे एक डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी होगी और यहाँ पे उसे डिसाइड करना होगा वेदर ही वांट्स टू टैकल लेस रिस्क और हायर रिस्क अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव रिटर्न्स, क्योंकि 3% रिस्क लेके वो 7% अर्न कर रहा है लेकिन 5.5% रिस्क लेके वो 9% अर्न कर रहा है। तो यहाँ पे उसे डिसाइड करना होगा कि उसने किस पोर्टफोलियो की तरफ जाना है। तो ये इन्वेस्टर प्रेफरेंस को चेक करना इन बिल्डिंग पोर्टफोलियो काफी जरूरी होता है कि इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो रिस्क को एब्जॉर्ब करना चाहता है या रिस्क को अवर्स करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, या वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहता है। देन we move to efficient portfolios and the efficient frontier. Investors can assemble a wide variety of different portfolios, each consisting of different investments and in differing proportions. उनके जो भी इन्वेस्टर्स असेंबल करते हैं, बिल्डअप करते हैं अपना पोर्टफोलियो, उसमें
मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके रिस्क, उसकी वैरायटीज, उसकी डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्री की मुख्तलिफ तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं और उनके प्रोपोर्शन भी मुख्तलिफ रख सकते हैं, 20% या 30% एक इंडस्ट्री का या 40% दूसरी इंडस्ट्री का. However, normal investors will always select a portfolio that offers a higher expected return or a lower risk than other portfolios that could be assembled. तो यहाँ पे भी एक इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंसेस बताई गई हैं कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर यानी नॉर्मल इन्वेस्टर विल यूजुअली गो फॉर हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, के जिसमें हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे उनमें इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर जाके, और या फिर किस में इन्वेस्ट करेगा जिसमें लोअर रिस्क होंगे और एज कम्पेयर टू अदर पोर्टफोलियोज या अदर एसेट्स. तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है? एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज अ पोर्टफोलियो दैट ऑफर्स, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? अ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट एनी अदर पोर्टफोलियो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. यानी पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ रिस्क, यानी इतने रिस्क में वो इतना रिटर्न दे रहे हैं. जैसे कि पिछले हमने एग्जांपल में देखा था कि पोर्टफोलियो बी और सी जो था वो 3% के अगेंस्ट 7% रिटर्न दे रहा था और दूसरा पोर्टफोलियो सी 5.5% रिस्क के अगेंस्ट 9% रिटर्न दे रहा था. तो हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट एनी अदर पोर्टफोलियो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, यानी स्पेसिफिक लेवल ऑफ रिस्क में, यानी अगर रिस्क 3 कंपनीज का 5% है लेकिन रिटर्न्स उनके एक के हैं 10%, एक है 15%, एक है 20%, दो 20% वाला जो एसेट है दैट इज गिवन हायर रिटर्न्स फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो की पहली खासियत है कि हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, और दूसरा क्या, अ लोअर अमाउंट ऑफ रिस्क देन एनी अदर पोर्टफोलियो फॉर अ गिवन साइज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो इसमें दोनों एफिशिएंट पोर्टफोलियो में दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजों की, यानी रिस्क और रिटर्न उसमें दोनों अपनी आइडियल पोजीशन पे है. यानी रिटर्न हर इन्वेस्टर चाहता है कि मैक्सिमम रिटर्न आए और रिस्क के लिए हर इन्वेस्टर चाहता है कि लोअर रिस्क हो या मिनिमम रिस्क हो. तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो के अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं कि हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क एंड लोअर अमाउंट ऑफ रिस्क फॉर अ गिवन साइज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो में आपने देख लिया कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क और लोअर अमाउंट ऑफ रिस्क फॉर a given size of expected return. Rational risk-averse investor will choose an efficient portfolio. यानी जो रैशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर रिस्क को अवॉइड करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, दे विल गो फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, कि वो अपने रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज करेंगे और रिस्क को कम से कम रखेंगे. क्योंकि जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्सिमम रिस्क की तरफ जाएंगे फॉर ऑब्टेनिंग हाईएस्ट रिटर्न्स. तो ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो था. द एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है पोर्टफोलियोज के अंदर? इन थ्योरी इट वुड बी पॉसिबल टू प्रिपेयर ग्राफ शोइंग एवरी पॉसिबल पोर्टफोलियो दैट इन्वेस्टर्स माइट चूज with the expected return from the portfolio plotted on the y-axis and the risk of the portfolio measured as a standard deviation of its expected return on the x-axis. Frontier efficient frontier और portfolios में हम ग्राफ ड्रा करते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न उनके क्या हैं, वो हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं, उनके रेस्पेक्टिव रिस्क, यानी दैट रिलेट्स टू द रिटर्न्स. तो हम इन दोनों को शो करके एफिशिएंट फ्रंटियर पोर्टफोलियो डिटरमिन करते हैं. दिस ग्राफ ऑफ पोर्टफोलियोज वुड बी शोन एज एन एग शेप्ड ग्रुपिंग ऑफ पोर्टफोलियोज.
क्योंकि मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज का वो एक मजमुआ बन जाता है, तो वो एक शेप फॉर्म में डेवलप हो जाता है, विद डिफरिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड डिफरिंग रिस्क, क्योंकि हर पोर्टफोलियो में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, रिस्क रिगार्डिंग रिस्क और रिटर्न्स, वो डिफरेंट होती हैं। द एफिशिएंट पोर्टफोलियोज ऑल लाई ऑन द टॉप एज। तो इस ग्राफ में आप ये देखेंगे कि जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं ऑल लाई ऑन द टॉप एज, यानी जो लाइन ड्रॉ होगी, जो शेप आखिर में निकलेगी, उसमें टॉप पे जो होंगे डेट आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। अ लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज एफिशिएंट पोर्टफोलियोज टू ऑब्टेन द एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ investment portfolios. A risk-averse investor will always choose a portfolio on this efficient frontier. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू सेलेक्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो। आइए देखते हैं वो किस हम ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे वी हैव प्लॉटेड रिटर्न्स और एक्स एक्सिस पे हमने रिस्क को डिफाइन कर दिया। जब हमने मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज को हर उसके रिटर्न और रिस्क को मैच किया, तो हमारे पास ये सारे क्रॉसेस आ गए कि एक पोर्टफोलियो का यहाँ पे आया, एक पोर्टफोलियो का यहाँ पे आया, यहाँ पे मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज के आउटकम जो उसके रिटर्न्स और रिस्क को देखते हुए निकले, वो यहाँ पे हमने सबको ड्रॉ कर दिया। तो ये निशान लगाने के बाद जब हमारे पास आउटकम आया और हमने उसके अपर जो पॉइंट्स थे उसको लाइन अप किया, तो हमारे पास ये एक शेप निकल आई डेट लुक्स लाइक एग शेप, जिसको हम एग शेप बोल रहे थे, वो ये वाली लाइन है। यानी इन पॉइंट्स को हमने जब सम अप लाइन में एक लिया, तो ये एक इस तरह की लाइन बन गई डेट लुक्स लाइक एग शेप लाइन। तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं डेट रिप्रेजेंट एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ पोर्टफोलियोज, और यहाँ पे जो फॉल कर रहे हैं पोर्टफोलियोज डेट आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। तो इस तरह हम एफिशिएंट फ्रंटियर को ड्रॉप करते हैं और वहां से हम एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को हाईलाइट करते हैं। अभी उसमें एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टर प्रेफरेंस में इंडिफरेंस थ्योरी। The next question is whether the investor might choose any investment portfolio on this efficient frontier, or whether there is any particular portfolio that will be preferred by all investors above all other portfolios. यहाँ पे यानी कि efficient portfolio निकालने के बाद लाजमी नहीं है कि investor will go for efficient portfolio, वो उसमें आपको इन्वेस्टर प्रेफरेंस भी देखनी पड़ेगी। इन अ पोर्टफोलियो थ्योरी दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस। यानी कि पीछे आपने देखा कि पिछले जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी उसमें एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को तो हमने हाईलाइट कर लिया, लेकिन कुछ इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस होती हैं, उसके लिए फिर एक इंडिफरेंस कर्व और इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस को मैच किया गया। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हायर रिस्क फॉर अ हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, बट दे मे आल्सो चूज अ लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ए लोअर रिस्क। एन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस फॉर हायर रिटर्न्स और लेस रिस्क कैन बी इलस्ट्रेटेड इन अ ग्राफ ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अभी हम इंडिफरेंस कर्व की ग्राफ को देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जब हम बनाएंगे तो उसमें जो पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं एक इन्वेस्टर अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से, वो किस तरह ड्रॉप होता है। यहाँ पे हमने वही एक्स एक्सिस पे हमने रिस्क को ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस पे रिटर्न्स को ड्रॉ कर दिया। तो आप यहाँ भी ये देख रहे हैं कि व्हेन देयर इज अ लेस रिस्क देयर इज लो रिटर्न्स, और रिस्क जब ज्यादा हो रहे हैं तो रिटर्न्स भी ज्यादा हो रहे हैं। तो कर्व 1 में आप देख रहे हैं कि रिस्क सबसे ज्यादा है और यानी मैक्सिमम उसका पॉइंट जो आ रहा है दिस वन, वहां पे रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू कर्व 2, और रिटर्न्स भी कम है एज कम्पेयर टू
कर्व 2, ये कर्व 2 की टॉप है और ये कर्व 3 की टॉप है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म में जब उसकी हम ड्रॉप करेंगे तो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के लिहाज से मुख्तलिफ उसकी लाइंस निकलेंगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने जब इनडिफरेंट होगा बिटवीन द कर्व्स, तो यहाँ से वो अपने रिस्क और रिटर्न्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट करेगा, अपना पोर्टफोलियो उसका कंस्ट्रक्ट करेगा। In this graph, there are three indifference curves, curve 1, curve 2 and curve 3. Curve 1 shows the combinations of risk and return that are of equal merit or attractiveness to the investor. The investor will be indifferent about choosing any portfolio that lies on this curve. यानी कर्व 1 में वो indifferent होगा, जितना रिस्क है उसके मुताबिक उसको रिटर्न मिल रहा है। Similarly, curve 2 shows the combinations of risk and return that are of equal merit or attractiveness to the investor. The investor will be indifferent about choosing any portfolio that lies on this curve. However, the investor will prefer on a portfolio on curve 2 rather than a portfolio on curve 1, because portfolios on curve 2 will offer a higher return for less risk देन पोर्टफोलियोज ऑन कर्व 1। जैसे कि हमने पीछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखा था कि रिस्क इन कर्व 1 ज्यादा है एज कम्पेयर टू कर्व 2 रिटर्न को देखते हुए। कर्व 3 ऑल्सो शोज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न दैट आर ऑफ इक्वल मेरिट और अट्रैक्टिवनेस टू द इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टर विल बी इनडिफरेंट अबाउट चूजिंग एनी पोर्टफोलियो ऑन दिस कर्व। However, the investor will prefer a portfolio on curve 3. जब हम एक कर्व के अंदर तो इन्वेस्टर इंडिफरेंट है, अगर वो कर्व 1 को भी देखता है तो इंडिफरेंट है कि कर्व 1 में अगर वो चूज करना चाहे तो एनी पोर्टफोलियो उसके लिए इंडिफरेंट होगा। लेकिन जब वो पोर्टफोलियो कर्व 2 में जाएगा तो डेट इज मोर अट्रैक्टिव टू फॉर द इन्वेस्टर एज कम्पेयर टू कर्व 1। लेकिन इसी तरह वो कर्व 3 में जाएगा तो कर्व 3 में जो पोर्टफोलियोज हैं दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर एज कंपेयर टू कर्व 2 एंड कर्व 1। तो इस तरह वो हमने इंडिफरेंस कर्व्स को हाईलाइट किया कि इंडिफरेंट पोजीशंस के हैं, और अगर नेक्स्ट स्टेप पे हमें चले जाते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट आता है इन्वेस्टर के लिए। So this is our conclusion. The conclusion is that investors will select a portfolio for investment that lies on an indifference curve so far to the left on the graph as possible. तो इसमें हमने देखा कि एक कर्व के अंदर तो इन्वेस्टर विल रिमेन इनडिफरेंट। अगर वो कर्व 1 को सिलेक्ट कर लेता है और कर्व 1 में देखते हैं तो कर्व 1 में किसी भी लोकेशन पे वो इनडिफरेंट होगा, बट वो he will try to remain at the left side because there is less risk as compared to other जो positions in the other portfolios in the curve। तो उसके हमने कंक्लूजन में ये देखा कि एक कर्व के अंदर तो इन्वेस्टर इनडिफरेंट रहेगा। Investor will select a portfolio for an investment that lies on an indifference curve as far to the left on the graph as possible। तो यहाँ पे चूज करते वक्त उसे ये चीजें देखनी होगी, और अगर वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो की तरफ जाता है तो उसमें हमने एफिशिएंट फ्रंटियर को डिस्कस किया, और अगर वो अपनी प्रेफरेंसेस में जाता है तो इंडिफरेंस कर्व को भी चेक किया कि वो स्पेसिफिक प्रेफरेंस बना के अपने कर्व को डिजाइन कर सकता है, और उस कर्व में वो इंडिफरेंट होगा बिटवीन ऑल पोर्टफोलियोज, लेकिन वो अपनी लेफ्ट साइड पे रहना चाहेगा क्योंकि वहां पे रिस्क सबसे कम है। इसके बाद आता है मार्केट पोर्टफोलियो। वी कैन कंबाइन द एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ पोर्टफोलियोज विद इन्वेस्टर्स in difference curves on the same graph. If we do, the graph will show that there is only one portfolio on the efficient frontier that will maximize the satisfaction of the investors. और वो पॉइंट क्या है, दिस इज
at point M on the graph below. This is the point where an indifference curve as far to the left as possible touches the efficient frontier. तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को क्लब कर दिया है, अपने एफिशिएंट फ्रंटियर को भी और इंडिफरेंस कर्व को, दोनों को क्लब कर दिया है. तो फिर हमारे पास ऐसा पॉइंट निकला है जहाँ पे वो मैक्सिमाइज कर सकेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को. आइए देखते हैं वो कैसे हमने किया. कि हमने पहले यहाँ पे ड्रॉ किया है एफिशिएंट फ्रंटियर जो कि एक्स शेप फॉर्म में यहाँ पे बिल्टअप हो चुका है, और दूसरा हमने किया है इंडिफरेंस कर्व. तो वहां जहां जिस पॉइंट पे वो कोइंसाइड होते हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर एन इन्वेस्टर कैन सेटिस्फाइज हिज डिजायर. तो वो कौन सा है? पॉइंट एम. तो ये वो पॉइंट है जहां पे वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को, एंड पोर्टफोलियो एम इज कॉल्ड द मार्केट पोर्टफोलियो. सो दिस इज कॉल्ड मार्केट पोर्टफोलियो. तो यहां तक हमने इन्वेस्टर अभी तक हमने 3 मेजर चीजों को डिस्कस किया है जो कि एक इन्वेस्टर देखता है अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हुए. बाकी एलिमेंट्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और चूजिंग द मार्केट पोर्टफोलियो और चूजिंग द पोर्टफोलियो के टॉपिक से ही हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर. और उसके बाद फिर हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पे जाएंगे जिसमें मुख्तलिफ रिटर्न्स की कैलकुलेशंस उसको प्रेजेंट करना सीखेंगे, और अपने पोर्टफोलियो को की एक समरी भी देखेंगे. पोर्टफोलियो प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी. सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी.